Hello friends, in this lesson we are going to discuss certain memory collected questions, means actual questions which were asked in BFM paper of CAIIB in June 2019. So let us start the discussion. ये आपके सामने पहला प्रश्न है. Bank A lent rupees 500 crore to Bank B for a period of 25 days under interbank money market operation segment. It is part of which of the following? पहले क्वेश्चन को ठीक से अंडरस्टैंड किया जाए. ये दिस डील जो है बैंक ए और बैंक बी के बीच में है, वेयर बैंक ए लेंट रुपीज 500 करोड़ टू बैंक बी and time period is 25 days and this transaction is part of interbank money market operation. Pure interbank money market operations में there are three segments. One is called term money, another is called call money, third one is called notice money. Notice money का पीरियड होता है 2 से लेके 14 डेज का, कॉल मनी का पीरियड होता है 1 डे का, टर्म मनी का पीरियड होता है 15 डेज से लेके 1 ईयर से नीचे तक. सो इट फॉल्स अंडर दिस पार्ट. सो आंसर विल बी टर्म मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. From 20% of net demand and time liabilities, RBI reduced the SLR to 18%. What is the effect? So SLR रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 20% से रिड्यूस कर दिया टू 18.5%. इसका इम्पैक्ट क्या होगा? So increase in interest rates, decline in cost of money, increase in money supply or decrease in money supply. Friends, whenever Reserve Bank of India reduces SLR, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा बैंकों के द्वारा एंड बैंक्स विल बी एबल टू मेक यूज ऑफ दैट मनी फॉर अदर पर्पसेस. यानी बैंकों के पास जो मनी सप्लाई है, लिक्विडिटी है, वो इंक्रीज कर जाएगी और उस लिक्विडिटी को बैंक यूज कर सकेंगे फॉर फर्दर लैंडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. Peterson Private Limited, a South African company, wants to execute a contract in India for which they need a bank account. Which of the following account can be suggested to them? So this is a company from South Africa and it has to do some contract execution in India, जिसके लिए उनको करंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी. तो इनमें से वो किस प्रकार का अकाउंट खोल सकते हैं? फ्रेंड्स, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, डायमंड डॉलर अकाउंट. डायमंड डॉलर अकाउंट एंड EFC अकाउंट, ये दोनों ही अकाउंट इंडियन रेजिडेंट एंटिटीज के लिए हैं. एंड स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, दिस इज मेंट फॉर द फॉरेन एंटिटीज, तो दे कैन ओपन दिस अकाउंट फॉर देयर बिजनेस ऑपरेशंस एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए करंट अकाउंट. Which of the following is excluded to calculate net demand and time liabilities for the purpose of SLR? So इनमें से कुछ आइटम्स हैं किनको एक्सक्लूड किया जाएगा जब हम डिमांड टाइम लायबिलिटीज में से नेटिंग पर्पस के लिए कैलकुलेशन करेंगे. तो हमें एक्सक्लूड कौन कौन सी करनी है? डिमांड डिपॉजिट्स, क्रेडिट बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट, बोरिंग फ्रॉम नेबार्ड. फ्रेंड्स, बोरिंग फ्रॉम नेबार्ड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम application of CRR and SLR. Hence, borrowing from NABARD, this will not be included in net demand and time liabilities. Dono others, they will be included. So there are many items which are part of net demand and time liabilities, and these two are also part of that. But borrowing from NABARD is exempted category item. Which one is a direct rate for foreign currency? Foreign currency के लिए direct rate कौन सा है? US dollar into Indian currency, यूरो इंटू इंडियन करेंसी और इंडियन करेंसी इंटू जैपनीज येन. बिकॉज हम रेट यहाँ पे देख रहे हैं फ्रॉम फॉरेन करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू. तो जब हम फॉरेन करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पहले फॉरेन करेंसी आना चाहिए. सो यूएस डॉलर पहले आ रहा है तो इट इज अ डायरेक्ट रेट, यूरो पहले आ रहा है इट इज अ डायरेक्ट रेट, यहाँ पे इंडियन करेंसी पहले आ रहा है इट इज नॉट अ डायरेक्ट रेट, इट इज इनडायरेक्ट रेट. रिपल इफेक्ट इज विच रिस्क? रिपल इफेक्ट जो है कंटिन्यूइंग इफेक्ट होता है, तो इट इज a form of systematic risk or systemic risk. So ripple effect, it represents the systematic risk. Country risk is which type of risk? जो country risk है इनमें से वो किस टाइप का रिस्क है? Counterparty is willing and has capacity to perform its obligation but unable to do so due to restrictions imposed by the government. So country risk credit risk का एक पार्ट है और ये रिस्क कब अराइज होता है? एक्सपोर्टर ने गुड्स एक्सपोर्ट की, इंपोर्टर ने गुड्स रिसीव की, इंपोर्टर इज विलिंग टू मेक द पेमेंट, बट जिस कंट्री में इंपोर्टर है वहां की गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं और बिकॉज ऑफ दैट
दैट काउंटर पार्टी दैट इज इंपोर्टर वो अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. So that type of risk is called country risk and it is part of the credit risk. Now case study on UCP 600. Documents are presented for negotiation to the nominated bank under letter of credit issued by Bank A. Nominated bank comes across the following discrepancies and refuses to make payment. Please examine if observations made by Bank B are correct or not. तो इसमें nominated bank जिसको पेमेंट करना है, नेगोशिएशन करना है, दैट इज बैंक बी. एलसी इशू किया है बैंक ए ने और ये ऑब्जर्वेशंस हैं डिस्क्रिपेंसीज का बैंक बी के द्वारा. तो लेट अस सी द ऑब्जर्वेशन. Transshipment is not allowed in the LC, but goods are to be carried by vessel X and then through vessel Z. तो इस पर्टिकुलर केस में दूसरा ऑब्जर्वेशन, quantity of goods specified in document documents is this much, whereas in LC it is 5,000 units. Third, date of negotiation expiring on July 12, but documents are presented on July 13, that is Monday. तो ये तीन हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं, तीन ऑब्जर्वेशंस हैं जो बैंक बी ने लगाई. So first is transshipment is not allowed in the LC, but goods are to be carried by vessel X and then through vessel Z. So एक ही पैसेज है जिसके अंदर गुड्स X और फिर उसके बाद वेसल Z ने कैरी करनी है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में let us go to article 19(2) sub article 2. So according to this article, if document state that transshipment may take place but LC prohibits transshipment, document can still be accepted. So अगर ट्रांसमिशमेंट इस प्रकार से मेंशन्ड है तो इस पर्टिकुलर केस में पहले वेसल X है फिर वेसल Z है, यानी दो शिप हैं. तो प्राइमरली क्योंकि पैसेज हम एक लेके चल रहे हैं और आर्टिकल 19(2) सबसेक्शन 2 कहता है कि इस केस में डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. नो सेकंड, क्वांटिटी गुड्स की दिस मच है डॉक्यूमेंट्स में और एलसी में इट इज दिस मच. इसमें क्वांटिटी एलसी में स्पेसिफाई की गई है. सो व्हेन क्वांटिटी इन द एलसी इज स्पेसिफाइड, इन दैट केस डॉक्यूमेंट्स में जो क्वांटिटी है that should not be more than this or less than that. तो in this particular case डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगे. सो डॉक्यूमेंट में जो क्वांटिटी है और एलसी में जो क्वांटिटी है, if quantity is mentioned in LC according to article 31, this objection of nominated bank is a correct one. This objection is not okay. If date of negotiation expires on a holiday, तुमको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जुलाई 13 को प्रेजेंट किए जा रहे हैं एंड इट इज मंडे, सो दिस मीन जुलाई 12 इज हॉलीडे दैट बीइंग संडे. तो इस केस में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29 अगर डॉक्यूमेंट नेगोशिएशन का जो डेट है वो हॉलीडे है तो देन नेगोशिएशन नेक्स्ट बैंकिंग डेज को हो सकता है. सो इसमें ऑब्जेक्शन नंबर ए एंड सी गलत लगाए हैं बैंक बी ने एंड ऑब्जेक्शन नंबर बी दैट इज करेक्ट वन. तो ये डॉक्यूमेंट बैंक नेगोशिएट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम विद बी. व्हाट इज इंक्लूडेड, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग बुक. ट्रेडिंग बुक में इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होता है. सो ट्रेडिंग बुक में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, इक्विटीज, फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स, बोरिंग्स. तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स ये तो इंक्लूड होंगे, इक्विटीज ये भी इंक्लूड होंगे, फॉरेन एक्सचेंज का जो होल्डिंग है वो भी इंक्लूड होगा, लेकिन बोरिंग इंक्लूड नहीं होगी. ट्रेडिंग बुक में हम उन आर्टिकल्स को लेते हैं जो मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं किए जाते, लेकिन बैंकिंग बुक में हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को लेते हैं जो मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं. तो बोरिंग जो है इट इज पार्ट ऑफ बैंकिंग बुक, इट इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग बुक. ए बैंक इन्वेस्टेड 200 crore in 5 years 6% semi-annual bonds, face value 100 rupees, purchase price 92 with an 8% market yield. Because of change in market yield to 7.95, the value of bond increased to 92.10. What is basis point value and what is total gain or loss on the total investment? 200 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट है, 5 साल उसका मैच्योरिटी पीरियड है, 6% सेमी एनुअली बॉन्ड है, ये फेस वैल्यू 100 रुपीज है, परचेज प्राइस 92 है, 8% मार्केट इंटरेस्ट यील्ड है, यानी करंट इंटरेस्ट रेट 8% है. सब्सिक्वेंटली इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ
और बॉन्ड का वैल्यू इंक्रीज कर गया। तो पहले हमने इसमें कैलकुलेट करना है बेसिस पॉइंट वैल्यू। सो हाउ डू वी कैलकुलेट बेसिस पॉइंट वैल्यू? सो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड। प्राइस में चेंज है 10 पैसा का, 92 एंड 92 10। यील्ड में चेंज है 5 बेसिस पॉइंट्स का, सो 8 एंड 7.95। तो दिस मीन पर बेसिस पॉइंट जो चेंज है दैट इज 2 पैसा। 10 पैसा डिवाइडेड बाय 5 बेसिस पॉइंट, सो इट इज 2 पैसा। सो ऑन 200 करोड़ जब फेस वैल्यू 100 रुपीज है तो इसके ऊपर ओवरऑल गेन या लॉस कितना होगा? क्योंकि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज कर गई, हेंस देयर इज गेन। और गेन कितना होगा? 200 करोड़ इंटू 2 पैसा। 2 पैसा है 100 रुपए के ऊपर एंड 100 से डिवीजन हम करेंगे तो हमारे पास जो गेन आएगा दैट इज ₹4 लाख। Predicted worst case loss at specific confidence level over a certain period of time assuming normal trading condition, उसको क्या कहा जाएगा? ये किस चीज का डेफिनेशन है? So this is definition of duration, no. Definition of modified duration, no. Definition of value at risk, yes. It is a definition of value at risk. Which of the following determines possible change in the market value of the portfolio that could arise due to non-normal movement in one or more market parameters? दो important aspect है इसमें जो ध्यान रखने पड़ेंगे। One is non-normal movement. यहाँ पे movement normal थी, यहाँ पे movement non-normal है। Another is it is not one parameter, it is one or more market parameters. So जब ये issue more than one parameters का है तो it is part of back testing, no. Part of downside potential, no. Part of stress testing, yes. It is part of stress testing. So अगर ये वन मार्केट वेरिएबल होता तो हमारा आंसर होता सेंसिटिविटी एनालिसिस, क्योंकि अब यहाँ पे वन और मोर मार्केट पैरामीटर्स हैं, hence our answer will be stress testing. Now another case study. B is a day trader at National Stock Exchange. He decides to invest in shares of SBI on January 12. Information about SBI share is as under. Current market price 380 है। Analyst का जो assessment है January 12 के लिए about change in price of share over next week is 410. यानी 380 के against this can increase up to 410 as upper band and it can come down to 360 as the lower band. 52 वीक्स का जो हाई है वो 400 रुपीज है, 52 वीक्स का जो लो है वो 310 है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस एंड बी वांट टू रिस्क हिज लॉस टू 1%। बी अपने लॉस को 1% तक रखना चाहता है एंड ही प्लान्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 2%। वो प्रॉफिट कमाना चाहता है 2% का, लेकिन लॉस वो रखना चाहता है 1% का। व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस ट्रिगर एंड प्रॉफिट ट्रिगर? तो इसमें अगर उसको लॉस बियर करना हो, अगर लॉस सिचुएशन बनती है 1% तक, वो कितना लॉस बियर करेगा? और अगर वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो प्रॉफिट का ट्रिगर कितनी वैल्यू के ऊपर होगा? सो नाउ वी कैन मेक द कैलकुलेशन। फर्स्ट स्टॉप लॉस ट्रिगर, करंट वैल्यू है 380, 1% तक वो लॉस बियर करने को तैयार है। दिस मीन ₹3.80 का लॉस वो बियर करने को तैयार है। सो 380 माइनस 380 3.80, तो दिस इज 1% ऑफ 380। हेंस 376.20 जब इस शेयर का वैल्यू 380 से रिड्यूस होकर 376.20 के ऊपर आएगा तो वो इसको बेच डालेगा। नाउ सेकंड प्रॉफिट ट्रिगर। सो प्रॉफिट ट्रिगर है 2% का, सो 380 का 2% इट इज 760। सो 380 इज द करंट प्राइस, 760 इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बीइंग 2%। इट मींस जब भी ये शेयर का वैल्यू 387.60 होगा तो वो इसको बेच देगा। सो दिस इज प्रॉफिट ट्रिगर एंड दिस इज स्टॉप लॉस ट्रिगर। XYZ exporters entered into a forward contract with Bank B for their use as export payments. So ये किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है? क्वेश्चन को पहले ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आंसर देंगे। ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है या एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है? यहाँ पे बैंक के साथ उसने एक डील किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्सपोर्टर एंड बैंक, ये दो पार्टीज के बीच में होते हैं और इनको हम कहते हैं ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स वो हैं जो एक्सचेंज के ऊपर सेल परचेज होते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल परचेज नहीं किया जाना। सो दिस इज बिटवीन बैंक ए, बैंक बी
एंड एक्सपोर्टर, हेंस इट इज ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव भी इसको हम कह सकते हैं। टियर 1 कैपिटल कंप्राइजेस ऑफ पेड अप कैपिटल, PNCPS, loans and loan provisions and loss reserves and revaluation reserve। टियर 1 कैपिटल में इसमें पेड अप कैपिटल इंक्लूड होगा, PNCPS परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इंक्लूड होंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी इंक्लूड होगा, लेकिन लोन प्रोविजंस एंड लोन लॉस रिजर्व्स ये इंक्लूड नहीं होंगे। Hence sir, जो इंक्लूड होंगे that is 1, 2 and 4 and number 3 will not be included here। There is mismatch in maturity profile of 1 to 2 years in a bank। 1 से लेके 2 साल का जो मेच्योरिटी प्रोफाइल है बैंक का, एसेट्स और लाइबिलिटीज का, यानी डिपॉजिट और लोन्स का, इन्वेस्टमेंट्स का, ड्यू टू विच देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन रिटर्निंग द डिपॉजिट ऑन टाइम। इसको हम इनमें से क्या कहेंगे, मार्केट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क। सो मिसमैच में जो रिस्क अराइज होता है दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। वेल फ्रेंड्स, इस प्रकार के और बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, सो यू कैन रीड दिस नोटिस केयरफुली। अगर आप इन क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड हो तो ये हमारे फोन नंबर्स हैं, ड्यूरिंग डे टाइम आप हमें कॉल कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑन संडे। आप चाहें तो हमें यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर सेल नंबर। सो वी विल कॉन्टैक्ट यू फॉर दिस, बट वी विल बी कॉन्टैक्टिंग यू ऑन एनी डे other than Sunday, so between 10 AM to 6 PM। Well friends, thank you and all the very best for your exam। आपका एग्जाम अच्छा हो, all the very best for you। Thank you friends। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सो दैट आप यूजफुल वीडियोस ऑन ए रेगुलर बेसिस आपको मिलते रहें। All the very best once again।